Question 1b, write explanation. Lesson number 7 का write an explanation starts from question number 9. Question number 9 क्या है? Write an explanation of center of curvature of the lenses. ये पेज नंबर 81 में दिया है. Center of curvature. The centers of spheres whose parts form surfaces of the lenses are called centers of curvatures of the lens. Next one क्या दिया है? Question number 10. राइट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. ये भी पेज नंबर 81 में दिया है. ऑप्टिकल सेंटर, द पॉइंट इनसाइड अ लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रेज पास without changing the path is called the optical center of a lens. Question number 11, write an explanation of principal focus. इसका आंसर है rays traveling parallel to the principal axis of a lens after refraction converge to a point on the principal axis or diverge in such a way that they appear to be coming out of a point on the principal axis. This point is called the principal focus of the lens. Question number 12, write an explanation of focal length. ये पेज नंबर 81 में दिया है. फोकल लेंथ का एक्सप्लेनेशन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ. नेक्स्ट वन इज व्हाट? राइट एन एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 13, राइट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस. ये भी पेज नंबर 81 में दिया है. प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज़ गिवन हियर. The imaginary line passing through both centers of curvature is called the principal axis of the lens. Question number 14, write an explanation of minimum distance of distinct vision. ये पेज नंबर 87 में दिया है. The minimum distance of an object from a normal eye at which it is clearly visible without stress on the eye is called as minimum distance of distinct vision. Next one, question number 15, farthest distance of distinct vision का explanation देना है. वो भी पेज नंबर 87 में ही दिया है. The farthest distance of an object from a human eye at which it is clearly visible without stress on the eye is called farthest distance of distinct vision. Till here it is distinct vision. Question number 16, write an explanation of magnification. ये पेज नंबर 85 में दिया है. The magnification due to a lens is the ratio of the height of the image to the height of the object. Question number 17, write an explanation of power of accommodation. ये पेज नंबर 87 में दिया है. The capacity of the lens to change its focal length as per need is called its power of accommodation. Question number 18, write an explanation of persistence of vision. ये पेज नंबर 91 में दिया है. The sensation on retina persists for a while. This is called persistence of vision. क्वेश्चन नंबर 18 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ लेसन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज़ राइट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ नियर पॉइंट ऑफ द आई. और ये जो है राइट एन एक्सप्लेनेशन का लास्ट क्वेश्चन है ऑफ लेसन नंबर 7. तो इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 87 में है. द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ नॉर्मल आई एट विच इट इज़ क्लियरली विजिबल विदाउट स्ट्रेस ऑन द आई इज कॉल्ड हैज़ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. The position of the object at this distance is called the near point of the eye, which is at 25 centimeter. Question 2a, write scientific reason. ये हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है. और लेसन नंबर 7 का जो साइंटिफिक रीज़न है क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट होता है. 45 में क्या पूछा है? अ कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस. ये आंसर जो है वो पेज नंबर 81 में दिया है. व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस they converge to a point on the principal axis. Since light rays come together, that is get focused at a point on the principal axis, so this type of lens is called a converging lens. 46th, give reason. Nearsightedness, this defect can be corrected by using spectacles with concave lenses. इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 88 में दिया है. In case of nearsightedness, the curvature of the cornea and the eye lens increases, so the converging power of the lens remains large. The eyeball elongates, so the distance between the lens and the retina increases. इसके बाद ये पॉइंट लिखना. Hence in nearsightedness the image of a distant object forms in front of the retina. उसके बाद यहाँ से वापस कंटिन्यू करो. This defect can be corrected by using spectacles with concave lens of proper focal length. This lens diverges the incident rays and these diverged rays can be converged by the lens in the eye to form the image on the retina.
47th, give reason far-sightedness. This defect can be corrected by using convex lenses. इसका जो आंसर है पेज नंबर 88 और 89 में दिया है. 88 पेज में यहाँ से लिखना है, in case of far-sightedness, curvature of the cornea and the eye lens decreases so that the converging power of the lens becomes less. Due to the flattening of the eyeball, the distance between the lens and retina decreases. इसके बाद ये पॉइंट लिखना है, hence the images of nearby object gets formed behind the retina. उसके बाद नेक्स्ट पेज का लिखना है, this defect can be corrected by using convex lens with proper focal length. This lens converges the incident ray before they reach the lens of the eyes. Lens के बाद लिखना है of the eyes. This lens, ये द को कट करके इसको this करना. This lens then converges them to form the image on the retina. 48th, give reason adults need bifocal lens spectacle. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 89 में दिया है. Sometimes adults suffer from nearsightedness as well as farsightedness. In such a case, bifocal lens are required to correct the defect. In such lenses, the upper part is concave lens and corrects nearsightedness, while the lower part is a convex lens which corrects the farsightedness. 49th, give reason presbyopia effect is more common in people over 40 years of age. इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 89 में दिया है. Generally, the focusing power of the eye lens decreases with age. The muscles near the lens lose their ability to change the focal length of the lens. The near point of the lens shifts further from the eye. Because of this, old people cannot see nearby objects clearly. उसके बाद क्वेश्चन से लिखना है, hence presbyopia effect is more common in people over 40 years of age. 50th, give reason simple microscope is used for watch repairs. ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन 4A, वही सेम क्वेश्चन है यहाँ पे. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 90 में दिया है. सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग लेंस हैज़ a convex lens with a small focal length produces a virtual, erect and bigger image of an object. One can get a 20 times larger image of an object using such microscope. Therefore, these are used for watch repair to see the small parts of watch while repairing watch without straining the eye. 51st, give reason one can sense colors only in bright light. जो लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन 4B भी सेम वाला क्वेश्चन है, वन कैन सेंस कलर्स ओनली इन ब्राइट लाइट. इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 91 में दिया है. द रेटिना इन आवर आइज इज मेड अप ऑफ मैनी लाइट सेंसिटिव सेल्स. These cells are shaped like a rod and like a cone. The rod-like cells respond to the intensity of light and give information about the brightness or dimness of the object to the brain. The conical cells respond to the color and give information about the color of the object to the brain. उसके बाद यहाँ से लिखना है, rod-like cells respond to faint light also, but conical cells do not. Thus, we perceive colors only in bright light. 52nd, give reason the movie cannot be enjoyed if it is too close to the screen in the cinema. इसका जो आंसर है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, the nearer someone is sitting to the screen of the cinema hall, the more is the intensity of light falling on the eye. Second point, thus the pupil has to contract a lot, which causes a strain in the eye. Third point, hence one cannot enjoy watching a movie from a very short distance from the screen in a cinema hall. लेसन नंबर 7 का लास्ट गिव रीज़न है क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा है, वी कैन नॉट क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी आई. अभी लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन 4C है ये दोनों भी सेम ही है. इट इज़ टेकन फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सरसाइज. अभी इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 87 में दिया है. Although the elastic lens can change its focal length to increase or decrease it, it cannot do so beyond a limit. उसके बाद नीचे से लिखना है, the minimum distance of an object from a normal eye at which it is clearly visible without stress on the eye is called as minimum distance of distinct vision. The position of the object at this distance is called the near point of the eye. For a normal human eye,
the near point is at 25 centimeter. Therefore उसके बाद क्वेश्चन का पार्ट लिखना है. उसके बाद क्या लिखना है? Therefore we cannot clearly see an object kept at a distance less than 25 centimeter from the eye. क्वेश्चन 2b डिस्टिंग्विश बिटवीन. लेसन नंबर 7 का जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है? डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस. ये लेसन के एंड के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6b का क्वेश्चन है. ये इसका आंसर क्या है? First point of concave lens is thinner at the center as compared to its edges. और convex lens का क्या है? Convex lens is thicker near the center as compared to the edges. Second point, it is called diverging lens और इसमें आएगा it is called converging lens. Next, it forms only virtual image और यहाँ पे आएगा it can form real and virtual image. Next, fourth point, the focal length of a concave lens is negative और यहाँ पे आएगा the focal length of a convex lens is positive. Next, fifth point, it has a virtual focus और इसमें आएगा it has a real focus. Question 8, distinguish between far sightedness and near sightedness. लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन 6a दोनों भी सेम ही है. अभी इसका आंसर क्या है? far sightedness, near sightedness. First point, a person suffering from this defect can see distant objects clearly but is unable to see nearby objects. यहाँ पे आएगा person suffering from this defect can see nearby objects clearly but is unable to see distant objects. Second point, this problem arises due to slight flattening of the eyeball और यहाँ पे आएगा this problem arises due to slight elongation of the eyeball. Third point, the curvature of the cornea and eye lens decreases so that the converging power becomes less. और इसमें आएगा the curvature of the cornea and the eye lens increases so that the converging power becomes more. Next, third point, the distance between the eye lens and the retina decreases और यहाँ पे आएगा the distance between the eye lens and the retina increases. Fourth point, the near point of the eye shifts further away from the eye और यहाँ पे आएगा the far point of the eye shifts closer to the eye. Fifth point of far-sightedness and near-sightedness. In this defect, image of nearby object is formed on retina but the image of distant object is formed in front of retina. और यहाँ पे आएगा in this defect, image of distant object is formed on retina but the image of nearby object is formed behind retina. लेसन नंबर 7 का लास्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? डिस्टिंग्विश बिटवीन मायोपिया एंड प्रेस बायोपिया. इसका आंसर है फर्स्ट पॉइंट, दिस प्रॉब्लम अराइसेस ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ आईबॉल और कर्व लेंसेज और यहाँ पे आएगा दिस प्रॉब्लम अराइसेस हैज़ अ नियर पॉइंट ऑफ एजड पीपल रिसीव. Also, ciliary muscle lose the capacity to change the focal length of the eye lens. Next, second point, in this defect, human eye can see nearby object distinctly but unable to see distant objects clearly. और यहाँ पे आएगा in this defect, aged people find it difficult to see nearby objects comfortably and clearly. Sometimes they are unable to see nearby as well as distant object. It should be distant object clearly. Third point, this defect can be corrected using concave lens of suitable focal length. और यहाँ पे आएगा this defect can be corrected using bifocal lens in which concave lens is useful for distant vision and convex lens is useful for near vision. क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग. ये हर एक क्वेश्चन कितना मार्क का है? 3 मार्क का है. और लेसन नंबर 7 का जो आंसर द फॉलोइंग है क्वेश्चन नंबर 57 से स्टार्ट होता है. नाउ व्हाट इज़ गिवन इन क्वेश्चन नंबर 57? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस. तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर. और ऑब्जेक्ट जो रहता है हमेशा लेंस का लेफ्ट हैंड साइड में रहता है और लेंस का लेफ्ट हैंड साइड में है, इसके लिए वो नेगेटिव में रहेगा और हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में ही रहेगा. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय u और वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है. सो u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर. वाई -10 सेंटीमीटर? बिकॉज इट इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस. Of focal length 12 centimeter, find out at what distance the image will be formed from the lens and what is the nature of the image. तो focal length कितना है? 12 centimeter है. Since it is convex lens, so focal length will be positive. So focal length, which is denoted as f, is equal to how much? 12 centimeter.
and what we have to find out the distance of at what distance the image will be formed. तो image distance which is denoted as v that we have to find out. और उसके अलावा और क्या ढूंढना है, what is the nature of image, तो nature of image भी ढूंढना है. तो इसमें अभी फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फॉर्मूला विल बी यूजिंग 1/f is equal to 1/v minus 1/u. Therefore, now 1/v is on this side, so keep it this on this side और minus 1/u को इस side लेके आओ. तो minus 1/u जब इस side आएगा तो it will become positive. So what we'll get, 1/v is equal to 1/f और minus 1/u जब it goes on the other side it will become positive 1/u. अभी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो तो what we'll get, 1/v is equal to 1/f का वैल्यू कितना है 12. तो 1/12 प्लस 1/u का वैल्यू क्या है -10. सो दिस विल बिकम -10. ना प्लस इंटू माइनस क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा. सो 1/v इज इक्वल टू 1/12 minus 1/10. Now take the LCM of this. इसका LCM क्या रहेगा 60 रहेगा. 12 और 10 का LCM क्या है 60. तो डिनोमिनेटर में 60 आएगा. सो 1/v इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में क्या आएगा 60. अभी 12 के टेबल में 60 कभी जाता है 5 के 12 5 है 60. तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू 1 5. तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस 10 के टेबल में 60 कभी आता है 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60 और 6 इंटू 1 इज हाउ मच 6. सो 5 माइनस 6. नाउ 1/v इज इक्वल टू 5 माइनस 6 कितना है -1/60. Therefore, v is equal to what? Now 1/v is minus 1/60. तो v क्या रहेगा, इसका उल्टा करने का, इसको उल्टा करने का, रेसिप्रोकल लेने का. तो this will become v is equal to -60 centimeter. Now since it is minus, so the image जो फॉर्म होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म हुआ है, इसके लिए वर्चुलर इरेक्ट रहेगा और मैग्नीफाइड रहेगा. सो द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस. आंसर क्या रहेगा, द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कौन सा साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में था और इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड में ही फॉर्म हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट जहाँ था वहीं पे इमेज भी फॉर्म हुआ है. सो द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड द इमेज इज व्हाट, इरेक्ट. व्हाट टाइप ऑफ नेचर ऑफ द इमेज क्या है, द इमेज इज इरेक्ट, वर्चुअल and magnified. सम इसमें थोड़ा चेंजेस करना है. इसमें दिया ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, उसको चेंज करके 10 सेंटीमीटर करना. और फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया, उसको चेंज करके 20 सेंटीमीटर करना. अगर ये चेंजेस नहीं करेंगे तो भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये सम और ये सम दोनों भी सेम हो जाएगा. इसमें भी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दिया है और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है, तो दोनों भी सेम सम हो जाएगा. तो चेंज दिस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर में चेंज करो और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर में. और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स का सेकेंड क्वेश्चन है ये. तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड क्वेश्चन है ये. अभी what is given over here, a 5 centimeter high object is placed. तो height of the object कितना दिया, 5 centimeter. So height of the object which is denoted as h1 is given what, 5 centimeter. उसके बाद क्या दिया है, at a distance of 10 centimeter from a converging lens. So distance of the object कितना है, 10 centimeter from the lens. और object हमेशा left hand side में रहता है और हमेशा negative रहता है. Distance of the object is denoted as u और ये कितना है -10 सेंटीमीटर. कन्वर्जिंग लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ क्या दिया है 20 सेंटीमीटर है और ये कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ जो रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है. कन्वर्जिंग लेंस का मतलब है कॉन्वेक्स लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो फोकल लेंथ विच इज डिनोटेड एज f इज व्हाट 20 सेंटीमीटर.
ढूंढना क्या है, डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड टाइप ऑफ द इमेज। तो इमेज डिस्टेंस ढूंढना है, हाइट ऑफ द इमेज भी ढूंढना है। ना हाउ टू सॉल्व दिस, प्रीवियस वाला सम में जो फॉर्मूला लिया था वही फॉर्मूला लेना है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अभी माइनस 1/u को इस साइड लेके आओ तो माइनस 1/u विल बिकम प्लस 1/u। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u विल बिकम प्लस 1/u। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू, देयरफॉर 1/v इज इक्वल टू f के जगह में क्या आएगा 20 सेंटीमीटर, सो 1/20 प्लस 1/u के जगह में क्या आएगा -10। Now 1/v is equal to 1/20 plus into minus will become minus 1/10. Now what is the LCM? 20 और 10 का LCM क्या है 20. So next step में आएगा 1/v, डिनोमिनेटर में आएगा LCM 20. Now 20 and 20 both are same, तो यहाँ पे 1 ही आएगा, माइनस यहाँ 10 के टेबल में 20 का भी आता है, 10 2s are 20, so 2 into 1 is how much 2, तो यहाँ पे आएगा 2. सो 1/v इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कितना है -1/20, देयरफॉर v इज इक्वल टू व्हाट, अभी ये 1/v माइनस 1/20 है तो v क्या रहेगा, इसका रेसिप्रोकल लिखना है, तो आंसर आएगा -20 सेंटीमीटर। तो यानी ये नेगेटिव में है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज नेगेटिव में है, नेगेटिव में जब भी रहेगा आंसर तो जो इमेज फॉर्म हुआ है वो भी लेंस का लेफ्ट हैंड साइड में ही फॉर्म होता है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द इमेज। नाउ व्हाट फॉर्मूला वी विल यूज, हाइट ऑफ द इमेज h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v अपॉन u। therefore h2 इज इक्वल टू व्हाट, v के जगह में क्या डालना है -20, ने तो इस h1 को शिफ्ट करो, सो व्हाट विल गेट v अपॉन u इंटू h1। नाउ सब्सटीट्यूट, h2 इज इक्वल टू v के जगह में क्या डालना है -20 अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, u इज इक्वल टू हाउ मच -10, तो यहाँ पे आएगा -10 इंटू h1 कितना था, h1 वॉज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सो इंटू 5। नाउ 0 and 0 विल गेट कैंसिल, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 5, 2 into 5 is equal to how much, 10 centimeter. So height of the image is what, 10 centimeter. पॉजिटिव है यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के तरफ है, नीचे के तरफ नहीं है। यू कैन सी इन दिस पेज नंबर 83 में जब भी नेगेटिव रहेगा तो इमेज, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो इमेज जो है वो लेंस का लेफ्ट हैंड साइड में है, ऑब्जेक्ट भी इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस, तो सिंस द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव था इसके लिए इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और H2 इमेज का जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव मिला है, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के तरफ है। अगर नीचे के तरफ रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो ये रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। दिस इज़ द इमेज ऑफ दिस फिगर। तो इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहेगा तो इट विल बी नेगेटिव, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा तो इट विल बी पॉजिटिव। सिंस इट इज़ पॉजिटिव ओवर हियर तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, सिंस इट इज़ ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, मतलब इमेज जो फॉर्म हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस है, तो व्हाट टाइप ऑफ इमेज इट विल बी, वर्चुअल and erect image of height. How much, what is the height of the image, 10 centimeter. Height 10 centimeter is formed at a what distance, 20 centimeter from lens and on the same side as that of the object. Why it is on the same side as that of the object, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है इमेज जो है वो लेंस का लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म हुआ है। 59 क्वेश्चन, ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 86 में सॉल्व एग्जाम्पल है। सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट वाला जो है दैट इज सेम वन। व्हाट इज गिवन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिनोटेड एज यू इज हाउ मच, -20 सेंटीमीटर। वाई माइनस, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड।
if the height of the object is 5 centimeter, तो height of the object is given as what? 5 centimeter. So height of object h1 से denote करते हैं, that is 5 centimeter. And the focal length of the lens is 10 centimeter. Focal length of convex lens is positive, so focal length of this will be positive, that is plus 10 centimeter. Negative नहीं रहेगा. और ढूंढना क्या है? What will be the position, size and nature of the image? How much bigger as compared to the object? तो magnification भी ढूंढना है, size of the image भी ढूंढना है, nature of the image भी ढूंढना है. So image distance ढूंढना है, height of the image ढूंढना है और magnification भी ढूंढना है. Now what formula you'll use? Same like the previous sums. 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. माइनस 1 अपॉन यू को इस साइड लेके आओ तो माइनस 1 अपॉन यू विल बिकम पॉजिटिव. सो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू. ना सब्सटीट्यूट द वैल्यू. 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ के जगह में क्या आएगा? 10 प्लस 1 अपॉन यू के जगह में क्या आएगा? माइनस 20. अभी प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 20. एलसीएम क्या है? 20 है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 20. तो डिनोमिनेटर में आएगा 20. 10 के टेबल में 20 का भी आता है. 10 2s are 20, तो 2 इंटू 1 इज़ वॉट? 2 माइनस, अभी ये तो दोनों सेम है तो ये 1 ऐसे ही आएगा, 2 माइनस 1. सो देयरफॉर 1 अपॉन वी इज इक्वल टू वॉट? 2 माइनस 1 इज़ वॉट? 1 upon 20. तो value of v is what? Distance of image is what? v is equal to, इसका reciprocal लेना है 20 centimeter. Since it is on the other side, positive है, इसके लिए लेंस का right hand side में रहेगा और लेंस के right hand side में रहेगा तो it will be what? Real and inverted image रहेगा. Now let us find out the height. Now what is our formula to find out the height of the image? h2 upon h1 is equal to v upon u. Now take this h1 on this side, so what you'll get? h2 is equal to v upon u into h1. Now value को substitute करो. h2 is equal to v का value क्या मिला था? 20 सेंटीमीटर. v का value मिला था 20, so वो value substitute करो यहाँ पे. 20 upon u क्या है? u is minus 20, तो here it will be minus 20 और h1 कितना था? 5 इंटू 5. फिर 20 और 20 कैंसिल हो गया, therefore h2 इज इक्वल टू वॉट? ये 1 माइनस है, इसके लिए माइनस 1 इंटू 5. सो h2 इज इक्वल टू वॉट? माइनस 5 सेंटीमीटर. सिंस इट इज माइनस, तो इमेज कहाँ पे रहेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहेगा. एंड व्हाट टाइप ऑफ इमेज? इट विल बी रियल इन्वर्टेड. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मैग्निफिकेशन. अभी मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए दो फॉर्मूला है. m इज़ इक्वल टू h2 अपॉन h1, ये भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो m इज़ इक्वल टू v अपॉन u. आंसर कोई भी यूज़ करो तो आंसर सेम ही आएगा. नाउ वी विल यूज़ m इज़ इक्वल टू v अपॉन u. सो m इज़ इक्वल टू v का वैल्यू कितना है? 20 और u का वैल्यू कितना है? माइनस 20. सो m इज़ इक्वल टू वॉट? minus 1 centimeter. Now magnification m is equal to minus 1 centimeter, and if you see the height of the object is 5 centimeter and height of the image is also 5 centimeter, यानी same size का image form हुआ है. So answer में क्या लिखेंगे? A real and inverted image of same size. Why same size? Height of the object is also 5 centimeter or height of the image is also 5 centimeter. So a real and inverted image of same size as object is formed at a distance of, कितना distance? Of 20 centimeter. तो इमेज का डिस्टेंस कितना मिला था? 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस. ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस का मतलब क्या है? लेंस का राइट हैंड साइड में फॉर्म हुआ है. लेंस का राइट हैंड साइड में फॉर्म हुआ है, इसके लिए वो रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा. एंड ऑफ सेम साइज क्यों है? क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज दोनों भी सेम है, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर. और मैग्निफिकेशन भी मिला है -1 सेंटीमीटर. इट विल बी ऑफ सेम साइज.
and the distance of image is how much from the lens? 20 centimeter. 60th question, two convex lens of focal length 30 centimeter and 10 centimeter each are kept in contact with each other. Find the power of their combination. तो दो लेंस है, पहला वाला लेंस का फोकल लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर और दूसरा वाला फोकल कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, और क्या ढूंढना है? पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन. तो लेट अस डिनोट द फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ एज f1 और सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है f2. तो f1 कितना है 30 सेंटीमीटर, तो f1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. अभी जब भी पावर ढूंढना है तो फोकल लेंथ जो है वो मीटर में रहना चाहिए, सो यू हैव टू डिवाइड बाय 100. 30 डिवाइडेड बाय 100, एक जीरो कट हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 0.3 मीटर. उसी तरह नेक्स्ट वाला फोकल लेंथ कितना है? सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, सो f2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो, 10/100 मीटर, 0 कट हो गया, दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर. Now we'll find out the power of their combination. Power of their combination, P is equal to, how we have to find out. Now P is equal to what formula you'll use? 1 upon F1 plus 1 upon F2. Now put the value of F1 and F2. So P is equal to 1 upon 0.3. F1 is how much? 0.3 and F2 is how much? 0.1 plus 1 upon 0.1. अब इस डेसिमल को हटा देते हैं. What we'll do? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करो, तब ये पॉइंट हट जाएगा. सो देयरफॉर P इज इक्वल टू व्हाट? 1 इंटू 10 अपॉन 0.3 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन 0.1 इंटू 10. नाउ 1 इंटू 10 इज हाउ मच? 10. और 0.3 इंटू 10 इज हाउ मच? डेसिमल हट जाएगा, इट विल बिकम 3 प्लस 1 इंटू 10 10 अपॉन 0.1 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1. नाउ व्हाट इज द एलसीएम ओवर हियर? यहाँ पे एलसीएम क्या है? 3 है. सो P इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में 3 आएगा, अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है तो सेम नंबर विल कम ओवर हियर 10 प्लस, अभी 1 के टेबल में 3 का भी आता है, 1 3s are 3, तो 3 इंटू 10 कितना है? 30. सो देयरफॉर P इज इक्वल टू व्हाट? 10 प्लस 30 कितना हो गया? 40 अपॉन 3. अभी 40 को 3 से डिवाइड करो, 3 1s are 3, माइनस करो 1 रिमाइंडर, ब्रिंग डाउन द 0, 3 3s are 9 minus 1 remainder. Now there is no more number, so put a decimal and put a 0 over here. Again it will go in 3 times. 3 3s are 9, 1 remainder, again put a 0, 3 3s are 9. So it is a recurring number, 13.333 ऐसा आएगा. So what is the answer? P is equal to 13.33 diopter. So power of the combination is how much? 13.33 diopter. 61st question, the following figure shows the change in the shape of the lens while seeing distant and nearby object. Complete the figures by correctly labeled diagram. तो ये डायग्राम ड्रॉ करके लेबल करना है और क्या बताया है इस फिगर में, दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट. ना फिगर ए में क्या दिखा है? light coming from a distant object. You can see the rays are going straight, it is not meeting anywhere. That means object जो है वो एकदम far away distance में है. तो ये फिगर में light is coming from a distant object और यहाँ पे rays are meeting, that means जो object है वो nearby है. So light coming from a nearby object. तो जब भी distant मतलब object जो है दूर है, far away है, तो लेंस का शेप कैसा रहेगा? लेंस बिकम फ्लैट. तो ये लेबलिंग करना है, तो लेंस बिकम फ्लैट. और यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट नियर बाय रहेगा तो लेंस का शेप कैसा रहेगा? लेंस बिकम राउंडेड. सो फिगर ए इज व्हाट? लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और व्हेनेवर द लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लेंस कैसा रहेगा? लेंस बिकम फ्लैट. उसी तरह सेकेंड बी, फिगर बी क्या है? लाइट कमिंग फ्रॉम अ नियर बाय ऑब्जेक्ट, तो लेंस कैसा रहेगा? लेंस बिकम राउंडेड. दिस फिगर इज गिवन इन पेज नंबर 87. You can see these two figures are given.
यहाँ पे क्या है, रेज जो है एकदम स्ट्रेट जा रहे हैं, दैट मीन्स लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तभी लेंस बिकम्स व्हाट, फ्लैट. और फिगर बी में यू कैन सी इट इज मीटिंग, सो लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ नियर बाय ऑब्जेक्ट. जब नियर बाय ऑब्जेक्ट से लाइट आता है तो लेंस बिकम राउंडेड. 62nd question. Write the function of the human eye and label parts of the figure given below. तो ये फिगर दिया हुआ है, इसमें कोई कोई पार्ट्स नंबरिंग किया हुआ है, वो पार्ट्स का नाम लिखना है और उसका फंक्शन भी लिखना है. तो फर्स्ट वाला जो 1 है वो क्या है, डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस. सेकेंड वाला क्या है, ऑप्टिक नर्व. थर्ड वाला क्या है, रेटिना. और फोर्थ वन इज़ व्हाट, प्यूपिल. अब इसका फंक्शंस क्या है, दैट इज डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस का फंक्शन क्या है, दिस लेंस प्रोवाइड्स स्मॉल एडजस्टमेंट्स ऑफ द फोकल लेंथ to focus the image. This lens creates real and inverted image of an object on the screen inside the eye. Second one is what, optic nerve था, और optic nerve का function क्या है, the light sensitive cells on retina gets excited when light falls on them and generate electric signals. These signals are conveyed to the brain through optic nerve. थर्ड वाला क्या था, रेटिना. रेटिना का फंक्शन क्या है, इट इज़ अ स्क्रीन इनसाइड द ह्यूमन आई विच कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स. इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन दिस स्क्रीन. फोर्थ वाला क्या था, प्यूपल. और प्यूपल का फंक्शन क्या है, द प्यूपल कैन चेंज डायमीटर एंड दस कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. अभी ये जो डायग्राम जो दिया था वो पेज नंबर 87 में दिया था, ये डायग्राम दिया है. और इस जो पार्ट्स दिया था और डायग्राम में, उस पार्ट्स का फंक्शन जो है वो पेज नंबर 86 में मिल जाएगा. 63rd question. Observe the given below figure, correct it and explain and write about what is your concept about this figure. तो ये फिगर जो दिया हुआ है इसमें कुछ तो मिस्टेक है, वो मिस्टेक को करेक्ट करके वापस ड्रॉ करना है और उसके बारे में एक्सप्लेन करना है. नाउ इफ़ यू सी दिस फिगर, तो इस पर्टिकुलर डिफेक्ट में द पर्सन कैन नॉट सी द फार अवे ऑब्जेक्ट. तो फार अवे ऑब्जेक्ट जब भी क्लियरली दिखाई नहीं देता है तो दैट डिफेक्ट इज़ नोन एज व्हाट, मायोपिया और नियर साइटेडनेस. और नियर साइटेडनेस या मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस नहीं यूज़ करते, कॉन्केव लेंस यूज़ करते. सो दैट इज़ अ मिस्टेक इन दिस फिगर. इट शुड नॉट बी कॉन्वेक्स लेंस, इट शुड बी अ कॉन्केव लेंस. This figure, correct figure is given in page number 88. You can see over here, the far away object cannot be seen clearly by the person. So this defect can be corrected by concave lens, not convex lens. And this defect is known as what? Myopia or nearsightedness. तो ये फिगर वापस ड्रॉ करना है और करेक्ट क्या करना है, कॉन्वेक्स नहीं बनाना है, कॉन्केव लेंस बनाना है और इसका एक्सप्लेनेशन भी देना है. सो व्हाट विल राइट, The defect shown in the figure is myopia. In this defect, the image of distant object forms in front of the retina. In this defect, the eye can see nearby objects clearly, but the distant objects cannot be seen clearly. This defect can be corrected by using spectacles with concave lens of proper focal length. This concave lens of spectacles diverges the incident rays, and these diverged rays can be converged by the lens in the eye to form the image on the retina. 64th question. Given below is diagram showing a defect of vision. Name the defect of vision and draw an accurate label diagram to correct this defect. तो ये फिगर में एक डिफेक्ट दिखाया है, वो व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफेक्ट है, कौन सा डिफेक्ट है ये बताना है. तो इफ़ यू सी इन दिस फिगर, ये डिफेक्ट में जो पर्सन है उसको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई नहीं देता है. जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स का जो इमेज है वो रेटिना के पीछे फॉर्म होता है, मतलब दैट इमेज इज़ फॉर्म बिहाइंड द रेटिना. तो ये कौन सा टाइप ऑफ डिफेक्ट है, फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया. उसके बाद उन लोग ने दिया है ड्रॉ एन एक्यूरेट लेबल डायग्राम टू करेक्ट दिस डिफेक्ट. तो ये डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए कैसे डिफेक्ट करेक्ट किया जा सकता है वो डायग्राम ड्रॉ करके बताना है. सो यू कैन सी ओवर हियर इन पेज नंबर 88 में दिया है करेक्शन ऑफ फार साइटेडनेस. तो दिस वाज द डिफेक्ट विच दे हैड शोन इन द फिगर. तो ये फिगर दिया था तो उसको करेक्ट करके कौन सा फिगर ड्रॉ करना है, दिस फिगर यू हैव टू ड्रॉ. तो करेक्शन ऑफ फार साइटेडनेस का फिगर जो ड्रॉ करना है वो ये है, अलॉन्ग विथ लेबलिंग. कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है टू करेक्ट फार साइटेडनेस.
65th क्वेश्चन, राइट लॉस इन गिवन फिगर। तो ये 3 फिगर दिया है, इसका लॉस लिखना है यानी रूल लिखना है, और ये तीनों फिगर जो है वो पेज नंबर 82 में दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट फिगर, ये फिगर और ये फिगर सेम है, तो इसका आंसर क्या है? रूल 1, when the incident ray is parallel to the principal axis, the refracted ray passes through the principal focus. So when the incident ray is parallel to principal axis, after refraction it passes through the focus. सेकेंड वाला फिगर जो है, दिस फिगर एंड दिस फिगर इज सेम, इसका आंसर क्या है? रूल 2, व्हेन द इंसिडेंट रे passes through the principal focus, the refracted ray is parallel to the principal axis. So when the incident ray passes through the focus, after refraction it becomes parallel to the principal axis. और जो थर्ड फिगर है और ये फिगर सेम है, तो इसका आंसर क्या है? Rule 3, when the incident ray passes through the optical center of the lens, it passes without changing its direction. So when the incident ray passes through the optical changes, it does not get refracted, it goes without changing its direction. 66 क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। से ये फिगर को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए, बी और सी को आंसर करना है। क्वेश्चन ए क्या पूछा है? वेर आर द अबाउट टाइप्स ऑफ लेंस कंस्ट्रक्शन यूज्ड? द आंसर इज द अबाउट टाइप्स ऑफ लेंस कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये जो फिगर है वो पेज नंबर 90 में दिया हुआ है। क्वेश्चन बैंक का जो फिगर है वो पेज नंबर, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 90 में दिया हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ लेंस कंस्ट्रक्शन कहाँ पे दिखाई देता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो आंसर क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्टिव लेंस? अभी इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और ये है आईपीस। अभी ये ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ है? यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसके लिए रियल एंड इन्वर्टेड है। और ये जो एफ ई जो है वो आईपीस का फोकस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है। एफ ई और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं फोकल लेंथ। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ है? विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो इसका आंसर क्या रहेगा? The image formed by objective is real inverted and formed at a distance within the focal length of eyepiece. Next question C. What happens instead of placing at FO if the object is placed in between O and FO? तो object को अगर O और FO, O मतलब ऑप्टिकल सेंटर और FO का मतलब है फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और आईपीस, ये आईपीस है। तो ऑब्जेक्ट को अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के यहाँ पे रखा तो व्हाट विल हैपन ना, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बहुत ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस का राइट हैंड साइड में फॉर्म होना चाहिए। जब ये राइट हैंड साइड में फॉर्म होता है तो ये आईपीस का ऑब्जेक्ट हो जाता है और आईपीस जो है इसका मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे फॉर्म होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव लेंस का इस साइड में। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को एफओ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो ऑब्जेक्टिव लेंस का राइट हैंड साइड में नहीं फॉर्म होगा, लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म होगा। इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड एज सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह आईपीस जो है वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो आंसर क्या है? इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन बिटवीन O and FO, a virtual image will be formed on the same side of objective as that of object. As a result, compound microscope will not be able to operate as expected. 67th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स गिवन इन दिस डायग्राम। तो ये डायग्राम में क्या दिया है उसे आइडेंटिफाई करना है, वो कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या दिया है कि कार्डबोर्ड लिया है, कार्डबोर्ड का एक साइड में केज बनाया और दूसरा साइड में मंकी बनाया। तो ये दो डिफरेंट फिगर ड्रॉ किए, एक साइड में केज और दूसरा साइड में मंकी। अभी जब भी एक कार्डबोर्ड को एक धागे से टाइट करके उसे ट्विस्ट करो और जब ट्विस्ट करके वो छोड़ देंगे तो क्या रोटेट करने लगता है। जब ये वो फास्ट रोटेट करता है तो वी डोंट फील कि केज और मंकी दो अलग अलग साइड में ड्रॉ किया हुआ है। वी फील दैट द मंकी इज़ इनसाइड द केज। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? persistence of vision। तो इसका आंसर यहाँ पे है, persistence of vision is phenomenon that allows the image formed on retina to remain imprinted there for 1/16th of a second after the object is removed from the front of the eyes. Second point, when a cardboard with cage drawn on one side and a monkey drawn on other side is tied to a thread and twisted and set into rotation, at one point, observer gets the illusion of the monkey being inside the cage.
Last point, before the image of cage could disappear from retina, image of monkey gets created on retina, giving observer the impression that the monkey is inside the cage. This happens due to persistence of vision. 68th क्वेश्चन, कंप्लीट पैराग्राफ बाय चूसिंग द राइट ऑप्शंस गिवन बिलो. तो यहाँ पे एक पैरा दिया हुआ है, बीच बीच में ब्लैंक दिया है, ब्लैंक को फिलअप करना है और इसमें क्या फिलअप करना है, कौन सा वर्ड फिलअप करना है वो ब्रैकेट में दिया हुआ है. यू हैव टू चूज़ फ्रॉम दिस ब्रैकेट एंड फिलअप दिस ब्लैंक. ये ब्रैकेट में एक वर्ड मिसिंग है, फार पॉइंट, दैट यू ऐड इन दिस ब्रैकेट. द डैश डिस्टेंस, यहाँ पे क्या आएगा, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ नॉर्मल आई at which it is clearly visible without stress on the eye is called minimum distance of distinct vision. The position of the object at this distance is called the dash of the eye. तो इस blank में क्या आएगा, near point. So यहाँ पे क्या आएगा, near point of the eye. For a normal eye, the near point is at dash. तो इस dash में क्या आएगा, 25 centimeter. The dash distance of an object. Now in this blank what will come? The farthest distance. The farthest distance of an object from a human eye at which it is clearly visible without stress on the eye is called dash of distinct vision. तो यहाँ पे आएगा farthest distance. Farthest distance of distinct vision. The position of the object at this distance is called the dash of the eye. तो लास्ट ब्लैंक में क्या आएगा, फार पॉइंट ऑफ द आई. अभी ये जो पैराग्राफ है वो टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है, पेज नंबर 87 में दिया हुआ है. फ्रॉम ईयर टिल ईयर द पैराग्राफ इज गिवन. तो पैराग्राफ कौन सा है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट से लेके फार पॉइंट ऑफ द आई तक दिया हुआ है. लेसन नंबर 7 का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69. क्वेश्चन नंबर 69 में दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द स्टैंजा. तो पिछला वाला क्वेश्चन के जैसा पैराग्राफ दिया है, स्टैंजा दिया, बीच बीच में ब्लैंक दिया और ये ब्लैंक में वर्ड्स फिलअप करना है और ये वर्ड्स कहाँ से चूज़ करना है, ब्रैकेट से चूज़ करना है. द रेटिना इन आवर आइज इज मेड अप ऑफ मैनी डैश सेल्स. तो क्या आंसर आएगा इस ब्लैंक में, लाइट सेंसिटिव सेल्स. दीज सेल्स आर शेप लाइक रॉड एंड लाइक अ कोन. द डैश सेल्स रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो इस ब्लैंक में क्या आएगा, रॉड लाइक. The rod-like cells respond to the intensity of light and give information about the brightness or dimness of the object to the brain. इसके बाद नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, पिछला पेज का जो पैराग्राफ है उसका कंटिन्यूशन नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है और जो भी ब्रैकेट में वर्ड्स दिया था दैट आई हैव रिटन ओवर हियर. द डैश सेल्स, तो इस ब्लैंक में क्या आएगा, द कोनिकल सेल्स. तो यहाँ पे आएगा कोनिकल. द कोनिकल सेल्स रिस्पॉन्ड टू द कलर एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द ब्रेन. ब्रेन प्रोसेसेस ऑल द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड वी सी द डैश इमेज. तो इस ब्लैंक में आएगा एक्चुअल इमेज, द एक्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. रॉड लाइक सेल्स रिस्पॉन्ड टू द फेंट लाइट also but dash cells. अभी इस blank में वापस conical आएगा but conical cells do not. Some people lack conical cells responding to certain colors. These person cannot recognize those colors or cannot distinguish between different dash. different dash में क्या आएगा, colors. तो इस blank में आएगा colors. So cannot distinguish between different colors. These persons are said to be dash. तो ये लास्ट वाला ब्लैंक में क्या आएगा, कलर ब्लाइंड. तो लास्ट वाला ब्लैंक में व्हाट विल कम, कलर ब्लाइंड. अभी ये जो पैराग्राफ है वो पेज नंबर 91 में दिया है टेक्स्ट बुक में, फ्रॉम ईयर टू ईयर, यहाँ से लेके यहाँ तक और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक. क्वेश्चन 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और लेसन नंबर 7 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है, एक्सप्लेन विद अ रे डायग्राम द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द वेरियस इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंसेज. तो कॉन्वेक्स लेंसेज से कैसा इमेज फॉर्म होता है, जैसे कि इमेज का पोजिशन क्या है, साइज ऑफ द इमेज कैसा है और नेचर ऑफ द इमेज कैसा रहेगा जब ये ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजिशन में रखा जाएगा. और ये कैसे बताना है, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम. अभी क्वेश्चन नंबर ए में क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, इन्फिनिटी. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी तो उसका साइज, पोजीशन और नेचर ऑफ द इमेज कैसा रहेगा, दैट यू हैव टू शो इट विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम. तो दिस इज अ रे डायग्राम व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी, और उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, F2 में फॉर्म होगा
और एकदम छोटा रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का रहेगा और रियल और इन्वर्टेड रहेगा. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे रहेगा? एट F2. साइज ऑफ द इमेज कैसा रहेगा? हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट. नेचर ऑफ द इमेज कैसा रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड. क्वेश्चन नंबर 19 का सब क्वेश्चन ए का जो मैंने रे डायग्राम बताया था कॉन्वेक्स लेंस का, हाउ टू ड्रॉ दैट रे डायग्राम इन ऑर्डर टू गेट करेक्ट पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज. इस तरह अगर रे डायग्राम बनाएंगे जिस तरह मैं बताऊंगी तो वो बहुत यूज़फुल रहेगा क्वेश्चन बी, सी, डी, ई और एफ के लिए. सो हाउ टू ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस. पहले तो एक स्ट्रेट लाइन बनाना, फिर राउंडर में एक फिक्स मेजरमेंट ले लेना, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यू कैन टेक एनीथिंग. और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में रखो और कॉन्वेक्स लेंस का एक साइड ड्रॉ करना. और जहाँ पे ये राउंडर रखा है उसे मार्क करके लेना, दैट विल बी योर 2F2. उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में रखो. ज़्यादा नज़दीक रखेंगे तो बहुत मोटा हो जाएगा और ज़्यादा दूर रखेगा तो बहुत पतला हो जाएगा, इट विल बिकम टू थिन. सो करेक्ट पोजीशन में रखना ताकि कॉन्वेक्स लेंस ज़्यादा मोटा भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो. अभी कंप्लीट करो, इस कॉन्वेक्स लेंस को बना लेना. अभी मैंने जहाँ पे ये राउंडर रखा है, जिस तरह मैंने यहाँ पे मार्क किया उसी तरह यहाँ पे भी मार्क करके लेना है, दैट विल बी 2F1. कॉन्वेक्स लेंस कंप्लीट करके ले लेना. और जो अनवांटेड पार्ट है उसको रब करके निकाल देना. नाउ 2F1 2F2 तो मार्क हो गया. अभी ऑप्टिकल सेंटर मार्क करना. ऑप्टिकल सेंटर कैसे मार्क करना है? वो कॉन्वेक्स लेंस का एग्जैक्ट मिडल में आना चाहिए. ये पॉइंट और ये पॉइंट के हिसाब से करेक्ट इन द मिडल प्रिंसिपल एक्सिस में बनाना है ऑप्टिकल सेंटर. ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर O. अभी F1 और F2 मार्क करना है. अभी F1 और F2 मार्क करने के लिए 2F1 और O के बीच का जो मिडल पॉइंट है दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो मेजर करो 2F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो लेंथ है यहाँ से लेके 2F1 तक मेजर करो कितना है. इफ़ यू सी इट इज़ कमिंग 4.4. 4.4 सेंटीमीटर का हाफ कितना है? 2.2 सेंटीमीटर. तो 2.2 सेंटीमीटर मार्क करो, दैट विल बी योर F1. उसी तरह राइट हैंड साइड में भी ऑप्टिकल सेंटर और 2F2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसे मेजर करो. ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे आया वही सेम इधर आना चाहिए, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी सेम भी हो सकता है. अभी इफ़ यू सी ओवर हियर ऑल्सो इट इज़ कमिंग 4.4 सेंटीमीटर. अभी 4.4 सेंटीमीटर का आधा कितना है? 2.2. दैट विल बी योर F2. तो अगर इस तरह करेक्टली 2F1 F1 O F2 और 2F2 मार्क करेंगे तो रे डायग्राम बनाने के लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा. नेचर, साइज़ और पोजीशन ऑफ द इमेज भी एकदम परफेक्टली मिल जाएगा. अभी रे डायग्राम में 2 इंसिडेंट रे का ज़रूरी है. तो 2 इंसिडेंट रे बनाने के लिए नाउ रूल 1, रूल 2, रूल 3 पेज नंबर 82 में दिया हुआ है. रूल 1, रूल 2, रूल 3, इसमें से कोई भी 2 रूल यूज़ कर सकता है. रूल 1 क्या था? व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. यानी इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास होता है. और रूल 2 क्या है? When the incident ray passes through the focus, refraction के बाद it goes parallel to the principal axis. और rule 3 क्या है? When the incident ray passes through the optical center, then after refraction it passes without changing its direction. वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, एकदम स्ट्रेट जाता है. इन 3 रूल में से कोई भी 2 रूल यूज़ कर सकता है इन ऑर्डर टू मेक इंसिडेंट रे, टू ड्रॉ द इंसिडेंट रे. मैं रे डायग्राम बनाते वक्त रूल 1 और रूल 3 यूज़ किया है. यू कैन यूज़ एनी रूल्स, रूल 1 रूल 2 भी यूज़ कर सकते हैं, रूल 2 रूल 3 भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई हैव यूज रूल 1 एंड रूल 3 while drawing the ray diagram.
क्वेश्चन बी क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। तो उसका इमेज इस तरह है, रे डायग्राम कुछ इस तरह है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड 2f1, और उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, राइट हैंड साइड में, लेंस का राइट हैंड साइड में, बिटवीन f2 एंड 2f2। और ये इमेज कैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा, एंड इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। सो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, बिटवीन f2 एंड 2f2। साइज ऑफ इमेज कैसा है, डिमिनिश्ड है, और नेचर ऑफ इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्वेश्चन सी में क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट 2f1। तो इसका रे डायग्राम कैसे रहेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 2f1 में है, तो इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, 2f2 में फॉर्म होगा, और रियल और इन्वर्टेड रहेगा। और इसका साइज़ कैसा रहेगा, जितना साइज, जो साइज़ का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज़ का इमेज भी फॉर्म होगा, यानी दोनों का साइज़ जो है, ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज़ दोनों सेम रहेगा। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, पोजिशन ऑफ द इमेज इज व्हाट, एट 2f2। Size of the image, same size. Nature of the image, real and inverted. क्वेश्चन डी, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, f1 और 2f2 के इन बिटवीन है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन f1 एंड 2f2, तो उसका रे डायग्राम इस तरह रहेगा। सो वेयर इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1, और इसका जो इमेज है वो लेंस का राइट हैंड साइड में फॉर्म होगा, दैट इज़ बियॉन्ड 2f2, 2f2 के भी आगे रहेगा, और जो इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, लेकिन अभी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से भी बड़ा है। सो व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द इमेज, बियॉन्ड 2f2, 2f2 के बियॉन्ड है। साइज ऑफ द इमेज एनलार्ज, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्वेश्चन ई, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस f1। तो जब भी ऑब्जेक्ट फोकस f1 में है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, और उसका रे डायग्राम कैसा है, सो इट विल बी लाइक दिस। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस f1, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, लेंस के राइट हैंड साइड में, बट एट इन्फिनिटी, वेरी फार अवे, बहुत दूर इमेज फॉर्म होता है, और हाईली एनलार्ज रहेगा, और रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट is at focus f1, position of the image कैसा है, at infinity, size of the image highly enlarged, nature of the image कैसा रहेगा, real and inverted। क्वेश्चन नंबर एफ, एन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन f1 एंड o। तो ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पे है, f1 और o के बिटवीन में है। तो रे डायग्राम कैसे रहेगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड o, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, और ये इंसिडेंट रे जो है ये रिफ्रैक्ट होके इस तरफ जाता है, और ये रिफ्रैक्टेड रे को अगर एक्सटेंड करेंगे तो इमेज जो है वो लेंस का लेफ्ट हैंड साइड में ही फॉर्म होता है, जो साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज फॉर्म होता है, और वो एनलार्ज रहता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो पोजीशन ऑफ द इमेज इज व्हाट, सेम साइड ऑफ द लेंस हैज़ द ऑब्जेक्ट, जो साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज फॉर्म होता है। साइज ऑफ द इमेज कैसा है, एनलार्ज। नेचर ऑफ द इमेज इज व्हाट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी लेसन नंबर 7 क्वेश्चन बैंक का लास्ट क्वेश्चन था ऑफ लेसन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 19 इज़ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन बैंक ऑफ लेसन नंबर 7। और ये सारा जो क्वेश्चंस जो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, इट इज़ देयर इन पेज नंबर 83 ऑल्सो द सेम क्वेश्चन। डिटरमाइन द पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड फॉर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स।